ٹھیک ہے، یہ مختلف طرح کی صفات کے نام ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے صفات لازمہ متضادہ جو ہوتی ہیں، مطلب ایک دوسرے کی ضد، مطلب جو اپوزٹس ہوتی ہیں صفات، ان میں یہ آ جاتی ہیں، یہ 5 جوڑے ہیں اور ان میں 10 صفات بنتی ہیں اگر ہم ان کو کھولیں تو جوڑوں کو، تو ٹوٹل 10 بنتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے غیر متضادہ میں ٹوٹل 8 صفات ہیں۔ ٹھیک ہے، مطلب ان کا اپوزٹ نہیں ہے، وہ جوڑے کی صورت میں نہیں آتی، وہ اکیلا اکیلا آتی ہیں۔ صفات لازمہ ان کو غیر متضادہ کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ صفات عارضہ ہیں ہمارے پاس، جن میں جو ہے وہ تفہیم، ترقیق، اخفاء، اقلاب، تو یہ اس میں تو آپ کا تمام جو یہ چارٹ ہے، آپ اس کو اس کے لیے اسٹڈی کر سکتی ہیں۔ تو اس میں جو ہے صفات لازمہ متضادہ میں سب سے پہلے ہم نے ہمس کا پیڑ پڑھ لیا تھا۔ اس میں ہم نے پڑھا کہ ہمس کا لغوی معنی کیا ہے۔ ہمس کا لغوی معنی پستی اور ذوف ہے، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مخموسہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی پستی اور کمزوری کے ساتھ ہے، مطلب آواز کی جو ٹون ہے آپ کی وہ کمزور ہو جائے گی، وہ پست نیچی ہو جائے گی، ضعیف ہوگی وہ، ٹھیک ہے۔ اور سانس، لیکن سانس جو ہے نا وہ جاری رہے گا۔ آواز اب یہ دیکھیے، یہ جو پہلا پیئر ہمس اور جہر کا ہے نا، اس کا تعلق جو ہے نا یہ سانس کے ساتھ ہے، اس پیئر کا تعلق سانس کے ساتھ ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ اور نہ یہاں پہ اب جیسے انہوں نے کہا یل حس کی سا ہے جو، ٹھیک ہے، اس حروف مخموسہ ٹوٹل 10 ہیں، جن کا مجموعہ فحسہ ہوئی شخص سکت ہے، مطلب یہ 10 حروف ہیں۔ اب یہ 10 حروف میں صفت ہمس پائی گئی، تو اب جو ہے باقی جو صفت جہر ہوگی باقی 19 حروف میں ہم کہیں گے وہ پائی جائے گی، کیونکہ ہم نے ہر ایک جوڑے پہ 29 حروف کو مکمل کرنا ہے۔ 29 حروف ہم ہر ایک پیئر پہ ڈیوائڈ کریں گے کہ ان میں یعنی 29 حروف میں وہ جو ایک جوڑا ہے اس میں سے یا تو ایک صفت پائی جائے گی یا پھر اس کے اپوزٹ جو ہے، اس لیے ہم ان کو متضادہ کہتے ہیں، مطلب اپوزٹ۔ کچھ حروف میں ایک صفت پائی جائے گی تو اس کی اپوزٹ جو صفت ہوگی وہ باقی کے حروف میں پائی جائے گی۔ جیسے ہمس اور جہر کے پیئر میں آپ نے دیکھا ہمس میں 10 حروف ہیں، اور باقی جو ہے جہر کے اندر ٹوٹل 19 حروف آ گئے ہمارے پاس، ہاں یہ جی ہمارے پاس صفت جہر ہے۔ ٹھیک ہے، اب جی یہاں پہ جہر کا لغوی معنی ہے، پلیز اپنے مائک میوٹ کر دیں، بلندی اور قوت۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ ہم اس میں ہماری آواز جو تھی وہ سلو ہو جاتی ہے، ضعیف ہو کمزور ہو جاتی ہے، لیکن جہر میں ہماری آواز جو ہے نا وہ بلندی کی طرف مائل رہتی ہے، اس میں قوت ہوتی ہے۔ اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو مجہورہ کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی بلندی اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ یہ سانس بند ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا اب دیکھیں ہمس میں تھا ہمارا سانس جاری رہنا ہے، ہم نے سانس کو جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ فوراً روک دینا ہے، ہماری آواز نیچی ہو جائے گی، تھوڑی پست ہو جائے گی، لیکن سانس جاری رہے گا۔ اب جہر کا جو ہے نا اس میں ہماری آواز تو بلند ہوگی لیکن ہمارا جو ہے نا وہ سانس رک جائے گا۔ تو آپ دیکھیں جتنے بھی حروف قلقلہ بھی آتے ہیں نا وہی اسی گروپ میں آتے ہیں، جہر والے گروپ میں آتے ہیں، کیونکہ ان میں بھی جو آواز ہے جو قلقلہ والے میں ہماری بند ہو جاتی ہے، تو اس لیے ان میں قلقلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب باقی اس کے علاوہ 19 حروف ہیں ٹوٹل اس کے اندر، تو اب ان کے ایک حرف کی مثال بھی، جیسے مأکول کا حرف الف ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ حروف مخموسہ کی تعداد 19 ہے، ان کو حروف مجہورہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ہم نے پریکٹس حروف ہمس کی کر لی تھی۔ اب ایک بات اور بھی اس کے ساتھ آپ نوٹ کر لیں کہ جیسے کہ میں نے کہا تھا، اب آپ نے ان کے جو صفات کا جو پیئر بن رہا ہے ہمارے پاس، ان کے اپنے ان کی میننگ کے لحاظ سے ان کا میننگ اور جو اس میں صفت پائی جاتی ہے، ان کی صفت دیکھیں، آپ نے دیکھا نا ہمارے پاس کچھ پازیٹیو صفات ہوتی ہیں، کچھ نیگیٹو صفات ہوتی ہیں، مطلب ایک ہمارے پاس اسٹینڈرڈ ہوتا ہے نا کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا چیز مضبوط ہے کیا کمزور ہے۔ یہ ایک ہمارے پاس نا، ہم جیسے کہتے ہیں میٹل جو ہے نا وہ ایک اسٹرانگ ہے، ایک اسٹرانگ دھات ہے، کہ وہ ایک میٹل جو لوہا ہے وہ ایک اسٹرانگ چیز ہے، اور ہم اس کے مقابلے میں کانچ کو کہیں گے یہ تو بڑا نازک ہے، مطلب ہمارے پاس آ گیا ایک، ہم نے کہا کہ اب جو ہے نا وہ قوت والا ہے جو میٹل ہے، اور جو کانچ ہے وہ ہم نے کہا یہ تو بڑا کمزور ہے، ضعیف ہے، ٹھیک ہے، ذرا سا گرے گا تو ٹوٹ جائے گا، جبکہ میٹل جو اسٹرانگ ہے۔ تو اسی بنا پر آپ دیکھیں جب آپ کسی حروف میں یہ صفات پائی جائیں گی تو وہ ان حروف کو بھی قوی یا ضعیف کر دیں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے آپ اس ایگزامپل سے سمجھ لیں، آپ جیسے ہم سے جس حرف میں پائی جائے گی ہم کہیں گے یہ ایک کمزور صفت ہے، اور یہ حروف بھی اس حرف کی
ایک کمزور صفت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کیونکہ حروف کو بھی دیکھنا ہے کہ کون سا حرف کتنا قوی ہے اور کتنا ضعیف ہے، ہم نے اس کو اس لحاظ سے بھی دیکھنا ہے۔ اب جن حروف میں یہ صفت پائی جائے گی، اب ہم نے کیونکہ ٹوٹل 5 جوڑے پڑھنے ہیں صفات لازمہ کے۔ اب میں نے پہلے بھی جب شروع میں بتایا تھا کہ ہر ایک حرف کے اندر کم از کم 5 صفات لازمن پائی جائیں گی، ٹھیک ہے، 5 صفات لازمن ہوں گی۔ اب ہم نے وہ 5 صفات جو ان پہ ڈیوائڈ ہوں گی ہر ایک حرف کے اوپر، تو وہ دیکھنا ہے کہ وہ ضعیف بھی ہیں یا پھر یعنی کہ اسٹرانگ ہے یا ویک ہے، یعنی کہ قوت قوی ہے یا ضعیف ہے۔ اب جو ہم چلے یہ ایک ضعیف صفت ہے، ہم نے اس کو ساتھ یہ بھی نوٹ کرنا ہے جو ہے ہمس ہے ایک ضعیف صفت ہے۔ تو اب یہ 10 حروف میں جو پائی گئی، مطلب یہ صفت ہمس پائی گئی، مطلب ایک ان کی کمزور صفت آ گئی ان کے اندر۔ اب باقی ٹوٹل جب صفات ان کے اندر 5 کی 5 جمع ہو جائیں گی نا، پھر ہم دیکھیں گے کہ کون سا لیٹر قوی بنا ہے اپنی صفات کے لحاظ سے، کون سا لیٹر ویک بنا ہے۔ اب یہاں پہ جہر ہے۔ اب جیسے کہ جہر کے نام سے آپ کو اس کے میننگ سے پتہ چل رہا ہے، اس کی صفت سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر بلندی ہے اور قوت ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ قوی صفت ہے۔ اب جن حروف میں یہ صفت پائی جائے گی، ہم کہیں گے ان میں ایک قوی صفت آ گئی ہے۔ تو آپ نے یہ والا بھی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں، یہ ویسے ہے تو اینڈ پہ، لیکن میں ساتھ ساتھ کرواتی ہوں تاکہ ساتھ ساتھ آپ کو کنسیپٹ اس کا ملتا رہے کہ ضعیف اور قوی کا بھی۔ اب نمبر 2 جوڑا آ جائے گا۔ اب اینڈ پہ انشاءاللہ ہم آپ کے کوشچن لیں گے، ٹھیک ہے، جو بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی ہوگی یا کوئی بھی ویکنیس ہوگی تو ہم اس کو ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 2 پیئر آ گیا، یہ پیئر نمبر 1 تھا ہمس اور جہر کا، پیئر نمبر 2 آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب پیئر نمبر 2 آ گیا، یہ والا پیئر یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک ہے یہ پیئر، یہ والا جوڑا شدت اس میں ہے، اس میں اس والے جوڑے کے اندر 3 پائی جائیں گی، ٹھیک ہے، اس کو ہم 3 میں ڈیوائڈ کریں گے۔ اب شدت ہے نمبر 1، شدت لغوی معنی سختی اور قوت، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے ان کو شدیدہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نام سے آپ کو اس کے میننگ سے اور اس کی صفت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک قوی صفت ہے، اس میں سختی بھی ہے اور قوت بھی ہے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی قوت اور سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ اب یہ پلیز مائک میوٹ کر لیں اپنے، پھر آپ کی جو بھی آواز ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ آتی ہے۔ اچھا، اور اس میں مخرج میں آواز ایسی قوت اور سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو نمبر 2 والا آپ کا پیئر ہوگا نا، اس میں یہ اس کا تعلق جو ہوگا نا یہ آواز کے ساتھ ہوگا۔ پہلا جو پیئر تھا، پہلا جو ہمس اور جہر والا آپ کا جوڑا تھا، اس کا تعلق سانس کے ساتھ تھا، سانس جاری رہے گی یا سانس بند ہو جائے گی۔ اب دوسرا جو جوڑا آ گیا ہمارے پاس شدت لکھوت اور توسط والا، اس میں جو ہے نا ہمارا تعلق آواز کے ساتھ ہے کہ آواز جو ہے نا وہ بند ہو جائے گی یا آواز جاری رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ شدت میں آپ نے دیکھا کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی قوت اور سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ آواز بند ہو جاتی ہے ان حروف کو، جیسے کہ احد کی دال۔ اب دیکھیں یہ نمبر 2 پیئر میں ہم نے اس میں بھی 29 حروف کو ڈیوائڈ کرنا ہے، تو آپ شدت والے میں دیکھیں گی جتنے بھی آپ کے حروف کلکلا نا وہ اسی والی صفت میں فال کرتے ہیں۔ ان تمام میں یہ صفت پائی جاتی ہے، جیسے دال ہے احد، دال، اب دال کے اوپر دیکھیں آپ کی آواز رک گئی ہے، مطلب آپ کی آواز بند ہو گئی ہے۔ تو یہ حروف 8 ہیں جن کا مجموعہ اجد کتن بخت، ٹھیک ہے۔ اب الف جیم دال قاف تو با کاف تا، یہ ٹوٹل جو ہے 8 حروف ہیں۔ اب ان 8 حروف کو ہم نکال دیتے ہیں شدت والے۔ اب شدت کے نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک قوی صفت ہے، ٹھیک ہے، جن حروف میں یہ صفت پائی جائے گی ہم کہیں گے یہ ایک قوی صفت اس حرف کے اندر داخل ہو چکی ہوئی ہے۔ اب نمبر اسی پیئر میں ہمارے پاس رخوت آ جاتا ہے، اس کا اپوزٹ۔ شدت کا اپوزٹ کیا ہے؟ متضادہ ہم کہتے ہیں متضاد، شدت کا متضاد ہے رخوت۔ اب رخوت کے لغوی معنی نرمی، ٹھیک ہے، نرمی، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے گی ان کو رخوہ کہتے ہیں۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی نرمی سے ٹھہرتی ہے کہ آواز جاری رہتی ہے، یعنی کہ آواز میں نرمی ہوگی لیکن آواز جاری رہے گی، بند نہیں ہوگی۔ جیسے شدت میں ہمارے پاس آواز بند ہو گئی تھی نا، آواز میں بلندی تو تھی لیکن اچھا بند ہو گئی ہے، جیسے احد ایک دم سے بند ہو گئی۔ اب لیکن رخوت جو ہے نا اس میں آواز میں نرمی تو ہوگی لیکن یہ آواز جو ہے نا وہ جاری رہے گی، رکے گی نہیں آواز، ٹھیک ہے۔ ان میں جو ہے نا آپ دیکھیں جیسے بسم اللہ سین ہے اس کا،
अब देखिए बिस्मिल्लाह में हमने पहले सीन है इसमें, बिस्मिल्लाह। अब देखिए यहाँ पे हम्स तो पाया गया था सीन में, हमने देखा था हम्स भी पाया गया, लेकिन अब इसमें इसके साथ साथ रिख्वत भी दाखिल हो गई है, रिख्वत वाली सिफ्त भी आ गई है। मतलब अब इसमें सीन में हमारे पास ये होगा कि सांस भी जारी रहेगा और आवाज भी जारी रहेगी, दोनों चीजें ऐड हो गई इसमें। तो देखिए अब इसमें रिख्वत भी जैसे जिस, अब सीन की आवाज को हमने जारी रखना है, इसमें साथ सांस भी जारी है और साथ आवाज भी जारी है। बिस्मिल्लाह की सीन, ये 16 हरूफ हैं जो कि 8 शदीदा और 5 मुतवस्सिता के अलावा हैं। अब ठीक है, अब ये क्योंकि हमारे पास ये वाला जो पेयर है, ये जोड़ा जो है, इसमें 3 है चीजें, ठीक है, शिद्दत है, रिख्वत है और तवस्सुत भी है इसमें। और शिद्दत और रिख्वत जो है ना, ये तो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अब इनमें जो है ना, इनके बीच बीच में वो कहते हैं कि अब 5 हरूफ ऐसे भी हैं जिनमें ना तो शिद्दत है और ना ही रिख्वत है, मतलब ना ही आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी अचानक से और ना ही जो है ना वो जारी रहेगी, मतलब दरमियानी कैफियत होगी इसमें, तवस्सुत दरमियानी को कहते हैं। तो अब तवस्सुत का लुग़वी मानी है दरमियानी हालत, और जिन हरूफ में ये सिफ्त पाई जाएगी उनको मुतवस्सिता कहते हैं। इन हरूफ को अदा करते वक्त जुबान आवाज में ना तो शदीदा की तरह सख्ती होगी और ना ही रिख्वा की तरह नरमी होगी, बल्कि दरमियानी कैफियत होगी, दरमियानी हालत होगी। जैसे अल फज्र, अल फज्र की रा, हमने अल फज्र रा को तेजी से रोका भी नहीं है और ना इसको जारी रखा है, अल फज्र हमने ऐसे भी नहीं किया। ठीक है, ये दोनों कैफियत से दरमियानी कैफियत में हम रहे हैं। तो फिर ये हमरा की ये, अब जिसमें ये जो इसके 5 हरूफ हैं, लिन उमर, ठीक है, लिन उमर है ये वाले, जहां पे भी ये आएंगे तो आपने ना तो इसको सख्ती से इनको अदा करना है और ना ही नरमी से इनको अदा करना है, इनमें हम दरमियानी कैफियत रखेंगे। ये लाम नून आइन मीम और रा है। अब इसमें हमने पहले में देख लिया था, शिद्दत जो है ना वो एक कवी सिफ्त है। अब रिख्वत है, लेकिन नरमी की वजह से ये एक कमजोर सिफ्त करार पाई है, दईफ, इसको कहेंगे हमें एक, ये दईफ सिफ्त है, ठीक है। अब बाकी जो है ये जो तवस्सुत में 5 हरूफ आते हैं, ये मुतवस्सिता ही रहेंगे, ठीक है, ये इनको हम ना कवी कहेंगे ना इनको ज़ईफ कहेंगे, इनमें कुछ भी हम इनको नाम नहीं देंगे। अब यहाँ पे नंबर, ये दूसरा हमारा जो जोड़ा था ये मुकम्मल हो गया है। अब नंबर 3 पेयर हमारे पास आ जाता है। नंबर 3 वाला पेयर क्या है? इस्तिआला और इस्तिफाल का है। नंबर 3 वाला पेयर इस्तिआला और इस्तिफाल का है। इस्तिआला का लुग़वी मानी है बुलंद होना, जैसे आला से निकला है कि थोड़ा सा यानी कि ऊपर की तरफ उठना, बुलंद होना। तो अब जिन हरूफ में ये सिफ्त पाई जाएगी उनको मुस्तालिया कहा जाता है, ठीक है, उनको मुस्तालिया, हरूफ मुस्तालिया या मुस्तालिया कहते हैं। इन अब ये देखिए, ये सिफात के, जहाँ पहले हमने महारिज के एतबार से हरूफ के अलकाब देखे थे, जिसमें हमने हल्किया शजरिया वगैरह पढ़े थे, आपको याद होगा। अब ये देखिए, ये सिफात के लिहाज से हरूफ के अलकाब है, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना इनके नाम, ये सिफात के लिहाज से हरूफ के अलकाब हैं। जिनमें अब देखें इन जिन हरूफ में ये सिफ्त इस्तिआला पाई जाती है। माजरत मैम, एक सवाल है साथ ही मैम, जी जैसे आपने कहा कि ऊपर वाला जो है उसका सांस से ताल्लुक है, हम्स का, और ये जी जो अब ये जो पढ़ रहे हैं दूसरा पढ़ा हमने, आवाज से ताल्लुक है ना, शदीदा का। थर्ड में जी जी ठीक है। अब इस वाला जो पेड़ है, इसमें हमने कहा कि ये जो जिसमें से जिन हरूफ में सिफ्त इस्तिआला पाई जाती है, इन हरूफ को अदा करते वक्त जुबान की जड़ तालु की जानिब उठती है, जिसकी वजह से ये हरूफ मोटे पड़े जाते हैं। अब ये देखें, जैसे कुल का खौफ, और ये 7 हरूफ हैं जिनका मजमुआ हुस्सा दौतिन किज है। ख्वा दौद ख्वा वाद उसका जब्त की। स्वाद द्वाद गैन त्वा काफ और ज़ा। अब देखिए, इन हरूफ को अदा करते वक्त मेरी जड़ जो है ना वो जुबान की जो जड़ है वो मेरी ऊपर की तरफ उठी रही है, तालु की जानिब। अब इसका ताल्लुक जो है ना जुबान की जड़ के साथ है, ऊपर उठने की तरफ और नीचे बैठने की तरफ, ठीक है। इसका ताल्लुक है जुबान की जड़ के वो ऊपर की तरफ रहेगी या नीचे की जानिब रहेगी, ठीक है। इस्तिआला का मतलब ये बुलंद होना, वो क्या बुलंद होगी? आपकी जुबान की जड़ बुलंद होगी, आपकी जुबान जहाँ से शुरू होती है ना, अक्सा लिसान से, तो आपने वहां देखिए, ये यहाँ से जुबान की जड़ शुरू होती है, जहां से आप कॉफ का जो मखरज है
यहाँ पे जहाँ से जुबान हमारी शुरू होती है, ये हम कहते हैं जुबान की जड़ है। अब ये उठेगी ऊपर की जानिब, ये ठीक है। तो ये जो अब बुलंद होगी ऊपर की जानिब, तालु की जानिब, तो ये हमारे पास ये 7 हरूफ हैं, ये अदा होंगे और हम कहेंगे इनमें सिफ्ते इस्तिआला पाई जाती है। अब इसके ऑपोजिट देखें, बिल्कुल ऑपोजिट है, इस्तिआला का ऑपोजिट इस्तफाल है। इस्तफाल का लुग़वी मानी है नीचे रहना। अब क्या नीचे रहेगा, हमारी जुबान की जड़ नीचे रहेगी। हमारी देखिए जुबान की जड़, आप देखें अगर हम सिफ्ते इस्तिआला में हम जुबान की जड़ को ऐसे उठा रहे हैं, तो ये आपकी जुबान है। अब यहाँ पे देखिए जुबान की जड़ यहाँ से उठी है, यहाँ पे उठी है आपकी जड़, तो ये हो गया, यहाँ पे हमने कहा ये सिफ्ते इस्तिआला की वजह से ऊपर उठी है। अब देखिए दूसरी जगह पे मैं इसको बनाती हूँ, तो ये हमारा जो जुबान है ना वो एज इट इज रहेगी। जैसे हमारी जुबान थोड़ी सी यहाँ से पतली होती है और यहाँ से थोड़ी सी ऐसी मोटी होती है, तो यहाँ पे ये देखिए जुबान ऐसे की ऐसे रहेगी, ये उठेगी नहीं। जो हमारा यहाँ पे था ना, ये इस्तिआला जो था ये ऐसे उठ रहा था ना, लेकिन इस्तफाल में हमारी जुबान जो है ना वो नीचे ही रहेगी, एज इट इज रहेगी। स्माइलिंग, आपके लिप्स जो है ना बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे ही रहेंगे, कुछ नहीं इसमें आपने चेंजिंग करनी। तो जुबान जो है ना आपकी बिल्कुल नीचे की तरफ रहेगी। जिन हरूफ में ये सिफ्त पाई जाए इनको मुस्तफिला कहते हैं। इन हरूफ को अदा करते वक्त जुबान की जड़ ऊपर के तालु की तरफ नहीं उठती। ठीक है, अब आपका ये जो आप पूछ रही थी कि इसका हम क्या रखें, तो इसका अब जुबान की जड़ का उठना और जुबान की जड़ का नीचे रहना। ये अब यहाँ पे जुबान की जड़ ऊपर की तालु की तरफ नहीं उठती, जिसकी वजह से ये हरूफ बारीक पड़े जाते हैं, जैसे कज़ालिका। आप इसको अदा करें, देखिए आपकी जुबान आराम से रेस्ट पोजीशन में रहेगी। आपके होंठ जब लेकिन इन हरूफ जिनमें सिफ्ते इस्तफाल पाई जाती है, जो मुस्तफला हरूफ हैं, आपने देखा आपने अपने लिप्स को हल्का सा स्ट्रेच, स्माइलिंग नहीं जैसे होता है, हल्का सा स्माइल जैसे करते हैं, उस पोजीशन में रखना है रुके मुस्तफला वो अदा करते वक्त। जैसे अब मैं अदा करी कज़ालिका, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे ख्वा को अदा किया, मैंने अपने जो है ना होंठ इसमें जो है ना अपनी एक्चुअल पोजीशन में रहेंगे, ना तो स्ट्रेच होंगे ना आपने गोल इनको करना है। जब ये इन वाले हरूफ की अदायगी होगी इससे आला वाले, लेकिन इस तफाल वाले हरूफ की अदायगी में आपने होंठों को लाइट सा स्माइलिंग में लेके जाना है। तो उसमें आपने इनको अदा करेंगे तो बड़ी अच्छी ये सिफ्त अदा होगी, सिफ्त इस्तफाल। तो इन हरूफ मुस्तालिया के अलावा जितने भी बाकी 22 हरूफ हैं, मतलब 7 हरूफ, हम 29 में से 7 हरूफ को माइनस कर दें तो हमारे पास 22 हरूफ बचे हैं। तो ये 22 हरूफ, इनके अंदर तमाम के अंदर सिफ्त इस्तफाल पाई जाएगी। ठीक है, अब इनके नाम से बल्कि मुझे आपसे पूछना है कि आपने इनका मीनिंग देखा है। एक ही सिर्फ अपना माइक अनम्यूट करेंगी और मुझे बताएंगी कि सिफ्त इस्ताला जो है, सिस्टर आयशा आप बताएं, देखिए सिफ्त इस्ताला है, इसके नाम से, इसकी सिफ्त से हमें क्या पता चल रहा है, ये कवि होगी या दईफ सिफ्त होगी? जी मैम, कवि होगी। हाँ देखिए, नाम से आपको पता चल गया, आपको जी मुश्किल ही नहीं मोटा हुई। मोटा इस्तेआला, जी मोटा पढ़ना, जी हाँ मुस्तफिल। अ, हाँ, यानी कि इनको मुस्तालिया, मुस्तालिया से। बुलंद जी बुलंदी से, हाँ बुलंदी से पढ़ना इनको, ठीक है। तो ये मतलब ये जी। कवि सिफ्त होगी। अब इसके जो ऑपोजिट है, जो इसकी मुतज़ाद सिफ्त है, वो इस्तिफाल है। तो अब जो है ये नीचे रहने, तो ये इसका मतलब है कि ये दईफ सिफ्त होगी। देखें ये दईफ और जो है स्टूडेंट्स को इसमें बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मैंने आपको इस तरह से बताया कि आप लोगों को आसानी से आप समझ सकें। ठीक है, आप यहाँ पे इस्ताला जिन हरूफ में पाई जाएगी वो एक कवि सिफ्त कहलाएगी। हमने कहा अगर ख्वा जो है इसमें ये सिफ्त इस्ताला पाई गई है, तो मतलब है इसमें एक कवि सिफ्त ऐड हो गई है। अब हम खा को ही ले लेते हैं, इस खा जो इसमें सिफ्त इस्ताला है। अब हमने देखा हम्स वाले पेयर में, अगर हम देखें तो हम्स वाले पेयर में इसमें हम्स भी पाया गया था। ठीक है, मतलब एक तो वीक सिफ्त थी इसमें, एक ज़ईफ सिफ्त थी इसमें ख्वा में, और दूसरी जो है ना इसमें शिद्दत वाली नहीं थी, दूसरी रिफ़त वाली थी। तो इसका मतलब है ख्वा में दूसरी सिफ्त भी ज़ईफ है। लेकिन अब यहाँ पे जाके जहाँ पे इस्तिआला आई, तो अब ये सिफ्त जो है ना ये कवि सिफ्त है। इसका मतलब है जो तीसरी सिफ्त ख्वा के अंदर आ गई वो एक कवि सिफ्त है जो कि इस्तिआला है। ठीक है, अब ये इतबाक वाला पेयर हम पढ़ के इंशाल्लाह क्लोज करेंगे, ताकि मुझे पता चले, बल्कि यह कंप्लीट ही कर लेते हैं, 4 5 पेयर हैं। तो अब ये मैम चौथा पेयर है इंशाल्लाह हमारा। आगे पढ़ते पढ़ते हम ये जान लेंगे कि जैसे अभी आपने बताया ना कि इसमें तो दोनों वो ज़ईफ भी पाई जा रही थी, अब कवि आ गई, तो हम किसे इम्पोर्टेंस देंगे पढ़ते हुए?
ये आपको जब हमें पे आएंगे ना, आप वक्त से जी पहले जी। सवाल कर रही हैं, मतलब जब इसका सॉरी टाइम आएगा सॉरी। ना तो वो सारे आपको सवाल मिलेंगे, ठीक है, आंसर मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे इतबाक। अब नंबर 4। अब नंबर 4 पेयर हमारे पास जो आ गया, जोड़ा आ गया नंबर 4 वाला, वो इतबाक, और इसके साथ है जो इसके ऑपोजिट शिफ्ट है वो है इनफिता। इतबाक के ऑपोजिट शिफ्ट क्या है? इनफिता है। अब इतबाक का लुग़वी मानी क्या है, हम इसका जब मानी देखेंगे ना हमें सब समझ आ जाएगी। इतबाक का लुग़वी मानी है ढांपना, और जिन हरूफ में ये सिफ्त पाई जाएगी उनको मुतबिका कहते हैं। मुतबिका कहते हैं। और इन हरूफ को अदा करते हुए जुबान का दरमियान, पहले देखें इस्तिआला और इस्तिफाल में हमारे पास जुबान की जड़ थी। अब यहाँ पे जुबान का दरमियान है आ गया, ठीक है। अब आपने ये याद रखना है, जुबान का दरमियान मतलब आपकी ये जुबान है, आपने ये इस्तिआला था तो यहाँ से ये उठाई थी। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी मैं आपको बताऊं कि जिन हरूफ में सिफ्त इतबाक पाई जाती है ना, उनमें सिफ्त इस्तिआला भी पाई जाती है। और सिफ्त इतबाक जो है ना वो 4 हरूफ में सिर्फ पाई जाती है, जो कि जिनमें सिफ्त इस्तिआला पाई जाती है ना, वो दोनों मतलब 4 ऐसे हरूफ हैं जिनमें ये दोनों सिफात इकट्ठा ही पाई जाती हैं। मतलब सिफ्त इतबाक अकेली नहीं है किसी के अंदर, इस्तिआला के साथ मिलके आती है। तो फिर हमारी जुबान की जो पोजीशन होगी ना, दरमियान से भी उठेगी, मतलब इतबाक की जब सिफ्त ऐड हो जाएगी ना, तो ये देखें फिर हमारी जुबान जो है ना ये दरमियान से भी उठेगी, यहाँ से भी। ठीक है। अब जबकि अब दूसरे इन 4 हरूफ हैं वो, ठीक है, तो ज़ा और स्वाद वाद। ये देखें ये 4 हरूफ हैं जिनके अंदर जो है ना सिफ्त इतबाक भी पाई जाती है और सिफ्त इस्तिआला भी है। देखिए आप गुस्सा दल्फिन केस को देख के आप अंदाजा लगाएं कि ये चारों हरूफ इनमें भी पाए जाते हैं। मतलब जुबान की जड़ जो सिफ्त इस्तिआला की वजह से उठी थी, लेकिन अब जुबान का दरमियान सिफ्त इतबाक के ऐड होने की वजह से ये भी उठेगा, और ये ऊपर के तालु की जानिब को उठेगा। ठीक है। अब ये होगी हमारे पास 4 हरूफ हो गए, जुबान का दरमियान ऊपर के ताल्लुक को ढांप लेता है, जिसकी वजह से ये खूब खूब मोटे पड़े जाते हैं। ये जिनमें सिफ्ते इतबाक पाई जाती है वो खूब मोटा पड़े जाते हैं, क्योंकि इनमें सिफ्ते इस्तिआला भी होती है। ये आपने याद रखना है। अब इसमें देखें जैसे अस्फिरात। अब स्वाद को देख लें और तो भी दोनों इसमें आ रहे हैं। तो उन्होंने स्वाद की एग्जांपल दी है। ये 4 हरूफ हैं जिनका मजमुआ स्वत दौत, ठीक है, दौज, स्वत दौज। तो ये हमारे पास क्योंकि ये काफी मोटे पड़े जाते हैं, तो आप इनको जब पढ़ेंगे ना तो आपने ये सत दर्द नहीं करना, एक स्वत दौज। तो ये हमारे पास जुबान का वो जो जड़ है और जुबान का जो दरमियान है ये दोनों उठे हुए होंगे। तो ये हमारी ये जो 4 हरूफ हैं इस तरह से इनकी अदायगी होगी। अब जो इतबा का ऑपोजिट था वो इन्फिता है। नंबर 4 पे जो इतबा का ऑपोजिट इन्फिता है, तो इसमें इसका लुग़वी मानी खुला रहना, जुदा रहना। और जिन हरूफ में ये सिफ्त पाई जाएगी उनको मुनफ़िताह कहते हैं। मुनफ़िताह कहते हैं इन हरूफ को अदा करते हुए कि जुबान का दरमियान ऊपर के तालु से जुदा रहता है। ठीक है। हमने इसका तालु तालु के हमारी जुबान उठेगी नहीं, मतलब हमारा जो दरमियान है वो नीचे ही रहेगा जुबान का। जैसे अल बुयूत, ता को उन्होंने एग्जांपल दिया। ता के अंदर इसमें देखें सिफ्त इस्तफाल भी हमने पीछे पढ़ा, सिफ्त इस्तफाल भी पाई जाती है ता में। और अब यहाँ पे सिफ्त इनकिता भी है, क्योंकि इस सिफ्त इस्तफाल में आपने पढ़ा था कि जुबान की जड़ भी नीचे ही रहती है, जुबान अब नीचे ही बैठी रहती है, ऊपर की जानिब बिल्कुल नहीं उठती। अब इसमें ता के अंदर सिफ्त इनकिता भी आ गई, मतलब ये तो बिल्कुल जो है ना, अब जो हमने पढ़ा था जुबान का और तालु के अंदर जो मुंह के अंदर गैप होता है, अब वो कायम रहेगा, उसमें हमारी जुबान जो है ना वो नीचे ही रहेगी। तो ये हमारे पास है हरूफे जो मुतबका है जो 4 हैं उसको छोड़ के 29 में से 4 हमने माइनस किया तो 25 आ गए। अब ये 25 जो हरूफ हैं, जो 25 हरूफ हैं, इनमें सिफ्त जो है ना ये मुनफता कहलाएंगे। ठीक है, मुनफता हरूफ मुनफतहा कहलाएंगे, क्योंकि इनमें सिफ्त इनफताह पाई जाती है। अब जो है नंबर 5 पे आपके पास जो लास्ट पेयर है, लास्ट जो मुतजाद वाला शिफ्ट है पेयर, वो है जोड़ा जिसको कहेंगे अजलाक और अस्मात का है, लास्ट वाला ये नंबर 5 वाला जोड़ा है आपके पास। और अजलाक, अब इसका ताल्लुक किसके साथ है? इसका ताल्लुक है पहले तो लघवी मानी देखते हैं, फिसलना। फिसलना, ठीक है। जिन हरूफ में ये सिफ्त पाई जाए इनको मुजलिका कहते हैं। और ये हरूफ होंठों और जुबान के किनारे से बहुत सहूलत से
फिसल कर अदा होते हैं, मतलब स्लाइड होती है ना, जैसे जैसे कोई स्लाइड पे चढ़ गया है, तो वो जो है ना, जैसे हमने किसी हर्फ को यहाँ पे रख दिया है, जिसमें से ये 6 रूप में पाई जाती है, जैसे फा है। अब हमने जुबान की जड़ पे इसको हमने अदायगी, हमने अंदर से इसको अदायगी करने लगे हैं, तो ये फौरन अपने मखरज की तरफ फिसल के यहाँ पे आ जाएगा अपने मखरज पे, क्योंकि इनका मखरज आपको पता है शफातान है, जो फा का मखरज है। तो ये फिसल के आसानी से बासहूलत अदा होते हैं, इसलिए इनको अजलाक फिसलन वाले, फिसलना इनके मानी है पाया जाता है। तो जैसे अलैहिम की मीम, अलैहिम, आप मीम को देखें, आपने मीम को किया तो आप खुद ब खुद ही आपकी मखरज पे जुबान जाके टिक गई है, आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करनी पड़ी कि मैं आपको, जैसे हम कहते हैं कि हमें स्वाद को उसके मखरज से निकालने के लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए, हमें एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन मीम जो है ना, जब इसमें सिफ्त इज़लाक पाई गई है, तो ये खुद जो है ना, ये मीम आप कहें कि मैं होठों को बंद ना करूं और मीम अदा हो जाए, कभी आप अदा कर सकती हैं, कभी नहीं आप अदा कर सकेंगी। आप देखें करके, कोशिश भी कर लें, आप नहीं अदा कर सकेंगी, क्योंकि जो मीम है वो दोनों होठों के मिलने से ही अदा होता है। तो इसमें जो है इसलिए इनको कहते हैं कि ये खुद ब खुद अपने मखरज से फिसल कर सहूलत के साथ आसानी से अदा हो जाते हैं। इनका ये हरूफ मुज़ल्लका 6 हैं, जिनका मजमूआ है फर्रा मिन लुब्बिन, फर्रा मिन लुब्बिन, फा रा मीम नून लाम बा। ठीक है, ये आपने इनका मजमूआ याद रख लेना है। तो में ये सिफ्त पाई जाएगी, जिन हरूफ में, वो ये एक ज़ईफ सिफ्त है, अजलाक जो है ये एक ज़ईफ सिफ्त है। ठीक है, अब ये होगा हर पेयर में हमारे पास एक तो कवि होगी, एक ज़ईफ होगी, ये नहीं होगा कि एक पेयर के अंदर दोनों ही कवि हैं या दोनों ही ज़ईफ हैं, ये नहीं होगा। ठीक है, हर पेयर के अंदर एक सिर्फ कवि होगी और एक ज़ईफ होगी। अब इस वाले पेयर में हमारे पास साथ ये है कि नंबर 5 वाले पेयर में जो हमारे पास अजलाक है, ये एक ज़ईफ है, इसका मतलब है अस्मात एक कवि सिफ्त है। ठीक है, अब इसके लघवी मानी से भी देख लेते हैं, जैसे रुकना, खामोश रहना। और जिन हरूफ में ये सिफ्त पाई जाएगी उनको मुस्बता कहते हैं। और जब ये हरूफ अपने मखरज से मजबूती और जमाओं के साथ अदा होते हैं, मतलब ये आपके मखरज को ऐसे पकड़ लेते हैं, खुद ब खुद नहीं अदा होते। जैसे वलद्दोलिन, अब दो, देखिए आपका दाद जो है ना, वो एक मखसूस मखरज है, उसके साथ आप मजबूती के साथ ये दाद अदा हुए हैं। ठीक है, वलद्दोलिन का दाद मुज़ल्लका 6 हरूफ के अलावा, अब 29 में से 6 माइनस कर दिए तो 23 हरूफ हमारे पास बचे, ये हरूफ मुस्बता हैं। ठीक है, और ये सिफ्त जो है, सिफ्त अस्मात जो है, ये एक कवी सिफ्त है। इसका ताल्लुक है जुबान के जमाओं के साथ है, मजबूती के साथ है और फिसलन के साथ है, कि कौन से हरूफ अपने आसानी से सहूलत के साथ अदा हो जाएंगे और कौन से जम के अदा होंगे अपनी जगह पे। तो ये आपके पास इनका मजमुआ, जो आपने ये याद रखना है कि जितने 5 जोड़े हैं आपके पास, पांचों जोड़ों के आपने मजमुए याद रखने हैं। 5 जोड़ों में से 5 जो हमारे पास सिफात होंगी, जिनके मजमुए दिए गए हैं, वो अगर आप सिर्फ वो मजमुआ याद रख लें तो बाकी ऑटोमेटिकली आपको खुद ब खुद आ जाएंगे बाकी हरूफ। ठीक है, कि आपने, जैसे आपने कहा अजलाक है, 6 हरूफ आप निकाल दें, आपने अजलाक का फुर्रा मिन लुब्बिन याद करना है, अजलाक को स्मार्ट के पेड़ का। अगर आपको इस जोड़े का फर्रा मिन लुब्बिन याद हो गया कि ये ज़राअत इनमें पाई जाती है, तो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा अस्मात किन हरूफ में पाई जाएगी। इन 6 हरूफ को हम निकाल देंगे तो बाकी सब में अस्मात ही होगी। तो ये आपने हमने जान लिया कि इनकी बाकी सिफ्ते लाजमा गैर मुतज़ादा हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ठीक है, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल आमीन। मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।